Okay, so this is lecture number 3 on infection control and safety. So let's discuss about infection control and safety. So the motivation bonus, as always, we'll start with is to achieve goals you have never achieved before. You need to start doing things you have never done before. अगर आपने कुछ ऐसा हासिल करना है जो आपने पहले हासिल नहीं किया, तो वैसा उससे जो आप नॉर्मल करते हो उससे हटके करना पड़ेगा. Sleepless nights, extra times, extra efforts, everything will be needed. ठीक है, so this is self-explanatory. Let's start with the infection control. Introduction to the infection control. So, if I take the term called infection, so what do we mean by term infection? If I write infection, so what is infection? What is infection? Infection का मतलब होता है कोई भी बैक्टीरिया बॉडी में आया, उसको बोलते हैं इन्वेजन. आके बॉडी में ग्रो किया, उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन. तो इन्वेजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स. डिजीज कॉजिंग microbes. Suppose you have had taken care of a patient who is having infection of, suppose you can say E. coli in the urine. So it means when the E. coli got inside the patient and it started multiplying, that point is termed as infection, right? So another example is COVID-19. So COVID-19 infection, when we call it as infection, when the person got that microbe and that microbe is now growing into the person. So that stage, the person is in, it is called as infectious stage, and the phenomena is called as infection. The infection of COVID-19 has occurred, infection of E. coli has occurred, and similarly, if I talk about a person had acute contact with a person of tuberculosis, he stayed in the same room, he breathed in the same room, that too without mask. Now the bacteria through the airborne like transmission, or the droplets got into the person. Now it's growing there. So this is now termed as infection. Now let's see what is infectious agent. Infectious agent. Let's see. What is infectious agent? Infectious agent, it means like any bacteria, virus, bacteria, virus, fungi, protozoa, bacteria, viruses, fungi, protozoa, even parasites, which causes infection. Okay, which causes infection, these are called as infectious agent. क्या मतलब है कि जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, हर एक चीज, हर एक बैक्टीरिया, हर एक वायरस, हर एक फंगस, सिंगुलर इज फंगस, प्लूरल इज फंजाई, प्रोटोजोआ मतलब कोई भी प्रोटोजोन्स बोल सकते हो, पैरासाइट्स, ठीक है, विच कॉजेस इन्फेक्शन, दीज आर इन्फेक्शियस एजेंट्स. अब ये डिसीज कॉज करेंगे कि नहीं करेंगे, इट डिपेंड्स अपॉन मल्टीपल फैक्टर्स. पर्सन की इम्यूनिटी भी हो सकती है, एंड ये भी हो सकता है कितना अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया बॉडी में इनोक्यूलेट हुआ है. सपोज एक एग्जांपल की तौर पे हम लेते हैं कि वी यूज सम attenuated vaccines. Let's take an example. I'm not writing that. Attenuated vaccines, live attenuated, like so live polio, measles, mumps, rubella, its vaccine is also live. उसमें क्या है, उसमें infectious agent is too small. It's too small and too weakened that it will not cause the infection. So that's not that will not cause infection, although it's infectious agent. Vaccine is also an infectious agent, but it will not cause infection in an organism. The reason behind that is uski pathogenicity, disease causing ability, it's reduced.
बिकॉज पर्सन हैज गुड इम्यूनिटी। तो इन्फेक्शियस एजेंट तब तक नहीं काम कर सकता जब तक वो बल्क में ना हो, इतने बल्क में कि वो इन्फेक्शन कॉज कर सके। और इतने बल्क, एक फर्स्ट बल्क की बात कर ली, सेकंड ऐसा बैक्टीरिया होना चाहिए जो उसमें कोई इन्फेक्शन कॉज करे। अब देखो, अगर ऐसा इन्फेक्शियस एजेंट है जो ह्यूमंस में काम ही नहीं करता है, सपोज लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ काउपॉक्स, तो काउपॉक्स ह्यूमंस को हो जाएगा? नहीं। infectious agent जरूर है, but that will not happen in humans because certain infectious agents are species specific. These are organism specific. These are specific to animals. These are specific to bird. Okay, so we have done the specific terminology. Now the chain of infection, it starts from infectious agent. This is one. Second is reservoir. सेकंड मैं बात कर रहा हूं रिजर्वॉयर, ठीक है। अब एक नॉर्मल सी बात करते हैं, रिजर्वॉयर, रिजर्वॉयर का मतलब रिजर्व पड़ा है जहां पे कोई चीज भी है ना। इफ आई टॉक अबाउट वाटर टैंक, हमारे घर पे वाटर टैंक्स होते हैं टॉप पे, that those are called as water reservoirs where we reserve the water for the whole day long. Now in cases of infection control, you have to see what is a reservoir. रिजर्वायर की बात करेंगे तो रिजर्वायर क्या है, ये मैं आपको आसान लैंग्वेज में बताऊं तो दिस इज होम, होम फॉर इंफेक्शियस एजेंट, होम फॉर इंफेक्शियस एजेंट। अच्छा, तो होम है तो इसमें क्या होता है, इट्स अ प्लेस, इट्स अ प्लेस वेयर infectious agent, infectious agent lives, grows and multiplies। ठीक है जी, तो ये रिजर्वायर आ गया। अब देखो इसमें क्या होता है, रिजर्वायर एक कॉमन एग्जांपल है, एक गायनिकोलॉजी में और ऑब्स्टेट्रिक्स में एक कॉमन डिसीज है, इसको बोलते हैं टॉक्सोप्लाज्मोसिस। उसमें एक डेफिनेटिव रिजर्वायर होता है उसका, डेफिनेटिव रिजर्वायर इन दैट केस, उसमें रिजर्वायर कौन सा होता है, उसमें रिजर्वायर होता है कैट। ठीक है, तो कैट इज अ रिजर्वायर बिकॉज कैट में ही वो ऑर्गेनिज्म लिव करेगा, कैट में ही वो ग्रो करेगा और कैट में ही वो मल्टीप्लाई करेगा। क्या मतलब, इसका ये मतलब है कि कैट इट्स अ डेफिनेटिव होस्ट और कैट इज अ रिजर्वायर। रिजर्वायर मतलब जहां पे इंफेक्शियस एजेंट रहेगा, जहां पे ग्रो करेगा, जहां पे मल्टीप्लाई करेगा। अब देखो, पहले हमने फर्स्ट में बात करी इंफेक्शियस एजेंट, कोई भी एजेंट हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरसेस और फंजाई, प्रोटोजोआ, पैरासाइट बोल सकते हो, जो करता है, अब वो है। बट नाउ सेकेंड में हमने बात करी कहीं ना कहीं पे उसको रहना पड़ेगा, and this is a home reservoir, it's a home for infectious agent or place where it grows, lives and multiplies. So this is two. Now when the organism has lived, grown and multiplied, now it has to get out, it has to get out from this organism or the reservoir. So portal of exit, what is it? Let's understand portal of exit. तो पोर्टल ऑफ एग्जिट क्या होता है, पोर्टल ऑफ एग्जिट्स के का मतलब है इट्स अ गेट। नॉर्मली ऐसे बता दूं, ऐसे ड्रॉ करूं तो दिस इज अ गेट, ठीक है। यू कैन से गेट, इट्स अ गेट थ्रू विच, गेट थ्रू विच infectious agent infect the reservoir। तो जहां पे वो ग्रो कर रहा था, मल्टीप्लाई कर रहा था, घर में है, घर से बाहर भी तो निकलेगा वो, है ना। इन्फेक्शियस एजेंट घर में था, वहां पे रहा, वहां पे बढ़ा, वहां पे ग्रो किया, मल्टीप्लाई किया। अब इट्स अ टाइम फॉर दिस ऑर्गेनिज्म टू गेट आउट, टू लिव इट्स लाइफ, टू डू इट्स द पर्पस ऑफ लाइफ।
पर्पस ऑफ लाइफ क्या, इन्फेक्शन करना, इन्फेक्शियस एजेंट है, क्या करेगा, इन्फेक्शन करेगा. नाउ द पोर्टल ऑफ एग्जिट इज अ गेट थ्रू विच इन्फेक्शियस एजेंट लीव्स द रिजर्वायर. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. आपको पता होगा व्हाट इज द पोर्टल ऑफ एग्जिट फॉर कोविड-19? These are droplets. These are droplets. What is the portal of exit of hepatitis E? मैंने बताया था A और E are vowels, they spread through bowel. So what is the portal of exit? That is bowel, or you can say stool. Stool में होता है वो, ठीक है. मतलब इसका क्या मतलब है? It's a gate through which infectious agent leaves the reservoir. Now next, मोड ऑफ ट्रांसमिशन बात करेंगे हम. अब हमारा तीन हो गया, ठीक है. अब फोर्थ पॉइंट इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन. मोड ऑफ ट्रांसमिशन, हाउ इट गेट्स ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिट कैसे हुआ. मोड ऑफ ट्रांसमिशन का क्या मतलब है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन हम आगे जाके पढ़ेंगे. इसमें होता है एयरबॉर्न है, ड्रॉपलेट है, ठीक है, कांटेक्ट है, ठीक है, एंड मोर लिख सकते हो आप, ठीक है. अब देखो, मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी कर लिया. अब बात आई पोर्टल ऑफ एग्जिट, पोर्टल ऑफ एंट्री. तो पोर्टल ऑफ एंट्री का क्या मतलब है? पोर्टल ऑफ एग्जिट के जैसे ये पोर्टल ऑफ एंट्री मतलब, पोर्टल ऑफ एंट्री इट मींस कहां से जिसमें डिजीज करेगा वहां पे एंटर करेगा. तो इट्स अ गेट ऑफ एंट्री, ठीक है, गेट ऑफ एंट्री इनटू द होस्ट. कहां से होस्ट में एंटर कर रहा है. तो लेट्स नाउ अगेन टेक द एग्जांपल ऑफ कोविड-19. कोविड-19 ड्रॉपलेट से आया, ठीक है, ड्रॉपलेट से आया किसी भी चीज के. सपोज मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयरबॉर्न था उसका. अब क्या हुआ, एयर में उसके ड्रॉपलेट्स रह गए. अब पर्सन इज नाउ इनहेलिंग दैट, पर्सन इज नाउ इनहेलिंग दैट, अंदर सांस ले रहा है, ठीक है. गिव मी अ मोमेंट. अब देखो, वी वर टॉकिंग अबाउट पोर्टल ऑफ एंट्री, ठीक है. अब कोविड-19 की बात करते हैं. कोविड-19 में उसके एयरबॉर्न ट्रांसमिशन थी, उसने उसके ड्रॉपलेट्स बाहर निकले, ठीक है. नाउ ड्रॉपलेट स्टेड इन द एयर, एयरबॉर्न ट्रांसमिशन थी उसकी. अब ह्यूमन के अंदर कैसे जाएगा? वो ड्रॉपलेट्स हैव टू कम आइदर इन कांटेक्ट विद द आईज और द माउथ और द नेजल म्यूकोजा. मास्क नहीं पहने थे, आईवीआर नहीं पहना था, वहां से अंदर चला गया. तो दिस इज कॉल्ड एज पोर्टल ऑफ एंट्री. आई होप ये इतना यहां तक क्लियर होगा. और फाइनल इज योर ससेप्टेबल होस्ट. ससेप्टेबल होस्ट का क्या मतलब है? उस होस्ट, एक स्पेसिफिक होस्ट होना चाहिए जिसमें वो डिसीज कॉज करे. सपोज काउ वाला या बर्ड्स वाला इन्फेक्शन ह्यूमंस में नहीं हो सकता, ठीक है. देयर आर सर्टेन जो हो सकते हैं, बट मोस्टली नहीं हो सकते. दिस डिपेंड्स के ससेप्टेबल होस्ट, ठीक है. तो विद दिस इट्स एन इंट्रोडक्शन टू द इन्फेक्शन कंट्रोल इन द टर्मिनोलॉजीज. एनक्लिक्स आपको इसके बारे में नहीं पूछेगा, बट यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी क्लियर अबाउट दिस चेन ऑफ इन्फेक्शन, बिकॉज ये तो बेसिक्स है, ठीक है. तो मैं साथ साथ में आपको बता रहा हूं क्या नहीं पूछ सकता वो, ठीक है, बट स्टिल यू हैव टू नो दिस. अब देखिए, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट, इसको तीन चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है. एक तो सोर्स चाहिए या रिजर्वॉयर चाहिए, एक होस्ट चाहिए विद अ पोर्टल ऑफ एंट्री रिसेप्टिव टू द एजेंट, एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन चाहिए, ठीक है. अब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट. लेट्स टॉक अबाउट सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट. अब देखो सोर्सेस में क्या है, ठीक है. इसमें अगर मैं बात करता हूं यहाँ के सोर्सेस की, ठीक है, तो सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट में क्या आएगा? Sources of infectious agent, it means infectious agent transmitted during health care derived primarily from human sources, but inanimated environmental sources
आर ऑल्सो इम्प्लीकेटेड इन ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन ह्यूमन टू ह्यूमन भी हो सकता है, एनिमल टू ह्यूमन भी हो सकता है, ह्यूमन टू एनिमल भी हो सकता है, बट देयर कैन बी केसेस, सपोज हमने स्टेथोस्कोप से एक पर्सन के को ऑस्कल्टेट किया, उसकी बेयर स्किन को, अब उस बेयर स्किन पे इन्फेक्शन था, लेट्स सपोज कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन वाला कोई भी इन्फेक्शन है, एमआरएसए है, ठीक है, अब एमआरएसए से वो स्प्रेड हो सकता है थ्रू स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप इट्स व्हाट, इट्स इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। अब ह्यूमन रिजर्वायर, ह्यूमन रिजर्वायर में क्या क्या चीजें आती हैं? ह्यूमन रिजर्वायर की बात करूं मैं, ह्यूमन रिजर्वायर में पेशेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। ह्यूमन रिजर्वायर्स में क्या क्या आएंगे? पेशेंट्स, इट कैन हैपन फ्रॉम पेशेंट, पेशेंट कैन बी द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। हेल्थ केयर पर्सनल, a doctor, a nurse, they can be sources of infectious agent. Now, household members, they can spread that too. With active infections, asymptomatic or incubation period of the infectious agent. और कई क्या करते हैं, बॉडी में थोड़े बहुत बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी और जीआई ट्रैक्ट में, जो इन्फेक्शन कर सकते हैं। और कुछ बैक्टीरिया होता है एंडोजेनियस फ्लोरा, एंडोजीनस फ्लोरा, इसको एक और नाम दे सकते हो कमेंसल्स, जो बॉडी में बैक्टीरिया रहते तो हैं बट ये कोई प्रॉब्लम नहीं करते, रहते हैं बट प्रॉब्लम नहीं करते। आपके इंटेस्टाइन में लाइक इकोलाई पड़ा है, कोई वहां पे प्रॉब्लम नहीं करेगा, बट अगर वो ही कमेंसल किसी और ऑर्गन में चला जाए, सपोज किडनी में चला जाए, इट विल कॉज यूटीआई, ठीक है। तो इसका मतलब है एंडोजीनस फ्लोरा भी होता है, दीज कैन ऑल्सो बी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। अब this is very important from NCLEX point of view, mode of transmission. Let me introduce you to this mode of transmission. This is important. I'm labeling it as important. Okay. अब देखो, कई पैथोजेंस जो है इन्फेक्शन करते हैं, लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट्स एंड प्रायॉन्स। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म डिफर करता है, कई एक से ज्यादा रूट से भी स्प्रेड होते हैं। तो एग्जांपल है, सम आर ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट। हर्पेस सिंप्लेक्स वायरस, हर्पेस सिंप्लेक्स वायरस जो है ये वेरिसेला से होता है, ठीक है, वेरिसेला ऑर्गेनिज्म से होता है, वेरिसेला वायरस से होता है। तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट से भी हो जाता है, ठीक है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट से भी हो जाता है। रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस पीडियाट्रिक्स में पढ़ेंगे, स्टैफ ऑरियस का इन्फेक्शन भी, ठीक है। अदर कैन स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट के हम कितने सारे पढ़ेंगे, मेथड पढ़ेंगे, कैसे हम मेमोराइज कर सकते हैं आगे लेक्चर में। इन्फ्लुएंजा स्प्रेड्स बाय ड्रॉपलेट, पर्ट्यूसिस स्प्रेड्स बाय ड्रॉपलेट। एयरबॉर्न में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस स्प्रेड्स बाय airborne route, and infectious agents like blood-borne viruses, hepatitis B, hepatitis C, and HIV. These spread through this blood. But एक और चीज मैं हमेशा बताता हूँ, blood-borne are not just spread by blood, blood and body fluids. Blood-borne नाम जरूर है, ये blood से भी spread होता है और body fluid से भी spread होता है, ठीक है। और हेपेटाइटिस बी एंड सी और एचआईवी ये रेयरली ट्रांसमिट होता है हेल्थ केयर सेटिंग्स में, ठीक है, वाया परक्यूटेनियस और म्यूकस मेम्ब्रेन एक्सपोजर। इंपॉर्टेंट ये है कि सारे इन्फेक्शियस एजेंट ही एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसमिट नहीं होते, ठीक है। सपोज किसी पर्सन को मल्टीपल इन्फेक्शन है, ये नहीं सारे इन्फेक्शन वो स्प्रेड कर देगा, ठीक है। तो यहां तक भी इंपॉर्टेंट था, बट हम हर एक चीज दोबारा पढ़ेंगे इन डिटेल। अब देखो, डायरेक्ट कांटेक्ट ट्रांसमिशन क्या है, डायरेक्टली ही पेशेंट के कांटेक्ट में आ गया, ठीक है। सपोज क्या है, ऑर्गेनिजम्स, डायरेक्ट ट्रांसमिशन तब होता है जब ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर होते हैं इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में विदाउट अ इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट और कंटामिनेटेड इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट और पर्सन, विदाउट मिडल पर्सन, डायरेक्टली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। सपोज ब्लड और ब्लड कंटेनिंग फ्लूइड थे पेशेंट में, ठीक है, सपोज उसको एचआईवी का इन्फेक्शन था और नर्स हु वाज टेकिंग केयर ऑफ द पर्सन डिड नॉट वेयर ग्लव्स, ठीक है, उसकी उंगली पे एक कट भी लगा था और वो जो कट लगा था अभी ओपन है, फ्रेश कट है, सपोज एम्प्यूल से कट लग गया,
अब क्या हुआ, वो ब्लड उसने उसने उसका सैंपल लिया, वही नीडल उसके प्रिक कर गई। अब जब वो नीडल प्रिक कर गई, उसमें ब्लड भी था, और अब देखो स्किन भी नॉन इंटैक्ट थी, नॉन इंटैक्ट स्किन थी। अब का क्या मतलब हुआ, ये जब अगर इन्फेक्शन होगा, ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन होगी। ठीक है, और एग्जांपल्स देखते हैं। एक एग्जांपल है माइट्स। स्केबीज एक इन्फेक्शन होता है, मैंने बताया था ना, स्केबीज हम पढ़ेंगे उसमें अपने इंटेगुमेंट्री सिस्टम में। स्केबीज एक टाइप का इन्फेक्शन होता है जिसमें इसके माइट्स जो होते हैं वो अपने स्किन में ना छेद बना लेते हैं, गड्ढे बना लेते हैं, उसमें रहते हैं। दोज आर माइक्रोस्कोपिक, नॉर्मली आपको नहीं दिखेगा। अब ये जो स्केबीज में माइट्स होते हैं, ये रात को इचिंग करती है, क्योंकि रात में अपनी बरूद से बाहर आती है ये। अब जब ये बरूद से बाहर आती है, पेशेंट में इन्फेक्शन कॉज करती है। बट बेसिक चीज यहाँ पे पढ़ने की ये है कि माइट्स कैन स्प्रेड फ्रॉम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टू द पेशेंट। मतलब अगर ग्लव्स के बिना नर्स ने इन्फेक्शियस स्किन डिसीज, स्पेशली स्केबीज को टच किया, उसको हो जाएगा। तो इसमें और कोई तो गलती है नहीं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से है, तो सीधा पता चला डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हो रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल इज healthcare provider develops herpetic white flow on finger after contact with herpes simplex virus when providing oral care to patients without using gloves. अब देखो, इसका मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ हर क्लास में। There was a student of some particular college, the place where I'm working. वो पेशेंट, वो स्टूडेंट ने क्या किया, ग्लव्स नहीं थे ना, तो वो ही वाज लाइक टेकिंग केयर ऑफ द पेशेंट, उसकी ना ओरल केयर कर दी। ठीक है, वैसे ही कि हाँ, लेके ना थोड़ा बहुत उससे वो लिप्स वगैरह ऐसे वैसे साफ कर दिए उसने। पता था कि ग्लव्स है ना नहीं है, उसने ऐसे ही कर दिया, थोड़ा बहुत जितना करना था उसने कर दिया। अब देखो, ग्लव्स यूज नहीं किए, उस स्टूडेंट को, बच्चे को विद इन अ वीक पूरी बॉडी पे हर्पीस निकल आई। ही वॉज ओनली फॉर 3 months। और आपको पता है हर्पीस जब हो जाता है, पर्सन हैज दिस पेन ऑल्सो, पूरी बॉडी में जनरलाइज पेन, एवरीथिंग लाइक दैट, फीवर, सब कुछ उसको ऐसा रहा। तो व्हाट वाज द रीजन, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया, ग्लव्स नहीं पहने। तो ऐसे बहुत केसेस होते हैं। तो अगर डायरेक्ट कांटेक्ट से हो रहा है तो हर्पिस भी भाई डायरेक्ट कांटेक्ट से हो रहा है, स्केबिस भी डायरेक्ट कांटेक्ट से हो रहा है। तो डायरेक्ट कांटेक्ट पेशेंट के से आने से क्या चीज बचा सकती है, ग्लव्स। तो ग्लव्स हमेशा पहन के रखना, दैट्स व्हाई इट्स कंसिडर्ड टू बी इन द स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस। कोई भी पेशेंट है, रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम, पर्सन इन्फेक्टेड है नहीं है, ग्लव्स पहनने बहुत जरूरी है। ठीक है, दिस इज अबाउट द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ट्रांसमिशंस। नाउ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ट्रांसमिशन से कौन कौन से इंफेक्शन होते हैं, तो दिस इज अ 5 स्टार। 5 स्टार का क्या मतलब है, एनक्लेक्स यहां से ना भर भर के क्वेश्चंस डालता है, 4 5। तो अगर बताओ, अगर किसी बंदे का पेपर 85 पे बंद हो रहा है, तो कितने क्वेश्चन एंटिसिपेटेड होंगे, एंटिसिपेटेड कितने क्वेश्चंस होंगे इन्फेक्शन कंट्रोल से, तो आई विल से 6 to 7 क्वेश्चंस, 6 to 7 क्वेश्चंस। अगर 150 तक जा रहा है तो उसके कितने क्वेश्चंस होंगे, 13 से 15 क्वेश्चंस हो सकते हैं उसके इन्फेक्शन कंट्रोल से। तो इन्फेक्शन कंट्रोल अपने आप में बहुत ही मेजर और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब कांटेक्ट का नाम से पता चल रहा है, कांटेक्ट में आया तो इन्फेक्शन हो रहा है। तो कांटेक्ट ट्रांसमिशंस की बात करते हैं। कांटेक्ट ट्रांसमिशंस में आपने याद रखना है मिसेस वी, MRSWEE। मिसेस वीक से क्या याद रखोगे, एम, एम से मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म। इसमें आप याद रखना है मेथिसिलिन रेसिस्टेंट, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफॉइस, ये एक एग्जांपल इसका। अनदर एग्जांपल इज वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट, वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटेरोकोकाई। ठीक है, वैंकोमाइसिन रेसिस्टेंट एंटेरोकोकाई आर फॉर रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस, एस फॉर स्किन इंफेक्शंस। ठीक है, कोई भी सारे स्किन इंफेक्शंस, सभी वुंड इंफेक्शंस, एंटेरिक इंफेक्शंस लाइक क्लोस्ट्रीडियम डिफिकल, आई इंफेक्शन लाइक कंजक्टिवाइटिस। इस पे नोट करना है कि आपको ये सारे याद होने चाहिए, एक बार में पढ़ने से याद नहीं होंगे।
इसको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा ओवर एंड ओवर। अगर मैं बोल रहा हूँ मिसेस वी है तो M फॉर मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ऑर्गेनिज्म, R फॉर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, S स्किन इन्फेक्शन, W वोंड इन्फेक्शन, E इंटेरिक इन्फेक्शन, E आई इन्फेक्शन। तो ये याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो ये जो साइड में है ना ये इमेज, ये CDC की डायरेक्टली अपडेटेड चीज है, इस पे याद करना है आपने। कॉन्टेक्ट प्रिकॉशंस वाला केस है तो हैंड क्लीन करने हैं बिफोर एंटरिंग एंड व्हेन लीविंग द रूम, ये ध्यान पे देना है। तो रूम में जाने से पहले और रूम से जब निकल रहे हो हैंड हाइजीन इंपॉर्टेंट है कॉन्टेक्ट में, ठीक है। बेस्ट चीज तो यही है कि आपने उसको ग्लव्स पहन के करोगे। हैंड हाइजीन सैनिटाइजर से हो सकता है इस केस में, क्योंकि अंदर गए सैनिटाइज किया, ग्लव्स पहने, ग्लव्स रिमूव किए, हाथ सैनिटाइज किया, ठीक है। अगर उस पे कोई ब्लड लग गया, सपोज आपके हाथ थोड़े बहुत कंटामिनेट हो गए हैं, सपोज आपको लग रहा है कंटामिनेट है, फिर आप हैंड सैनिटाइजर नहीं यूज करोगे, फिर आप यूज करोगे नॉर्मल सोप एंड वाटर, ठीक है। ये पता है बिकॉज यू हैव वर्कड, है ना। अब देखो प्रोवाइडर्स एंड स्टाफ, इसका क्या है, पुट ऑन ग्लव्स बिफोर रूम एंट्री एंड डिस्कार्ड ग्लव्स बिफोर रूम एग्जिट, ठीक है। अंदर जाने से पहले ग्लव्स पहनने हैं और बाहर निकलने से पहले उतारने हैं, ठीक है। अमन दीदी, आर यू गेटिंग दीज? दिस माइट बी बिट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी फॉलो इन दिस रूटीन, समझ लग रही है? यस यस, हाँ अब लग रही है, स्टार्टिंग में थोड़ा नहीं लगा था क्योंकि मैं पीछे थी ना इसलिए। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। अब इसमें देखो कॉन्टेक्ट प्रिकॉशंस में ये चीज का ध्यान रखना है, ग्लव्स पहनने हैं, अंदर जाने से पहले तो पहनने हैं बट बाहर आने से पहले उतारने हैं इसको। रूम में ही ये हमारे बिन्स होने चाहिए। अब देखो दूसरी चीज, अगर ज्यादा कांटेक्ट पे आपने उस पेशेंट का ध्यान रखना है ना, सपोज आपका बॉडी उसके कांटेक्ट में आएगा, लाइक उसका बैक केयर वगैरह करना है पेशेंट का, कांटेक्ट प्रिकॉशंस है उसमें, आपने देखा स्किन इन्फेक्शन, वुंड इन्फेक्शन या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, आप क्या बोलोगे? गाउन पहनोगे? यस, गाउन एंड ग्लव्स इंपॉर्टेंट है, बट गाउन अंदर जाने से पहले पहन लेने, बाहर जाने से पहले डिस्कार्ड करना है उसको, मल्टीपल टाइम्स यूज नहीं होगा, ठीक है। अगर यही चीजें हम अपने हॉस्पिटल सेटअप्स में इंडिया में एक्सपेक्ट करें तो नहीं हो सकता, इतने रिसोर्सेस ही नहीं है। even very good hospitals, they cannot afford all the precautions and they even do not know details about the infection control also, ठीक है। अब देखो ये हो गया, ग्लव्स पहनने हैं, गाउन पहनना है, अंदर जाने से पहले पहनना है, बाहर आने से पहले उतार देना है, तो ये चीज है कॉन्टेक्ट प्रिकॉशंस की। अब इसमें देखो ये सारे इन्फेक्शन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट MRSA हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं, उसमें क्या होता है, आपने डेडिकेटेड और डिस्पोजेबल इक्विपमेंट यूज करने हैं। सपोज अभी एक ग्लव्स जो है दूसरे पेशेंट में यूज कर सकते हो, अगर दोनों ही मेथिसिलिन रेजिस्टेंट हो MRSA तो भी नहीं यूज करने। एक ग्लव, पेयर ऑफ ग्लव्स फॉर वन पेशेंट ओनली, दूसरे पेशेंट पे सेपरेट पेयर ऑफ ग्लव्स चाहे सेम डायग्नोसिस हो, ठीक है। अब देखो इक्विपमेंट्स की बात करूं, इक्विपमेंट्स की, इन केसेस में जो स्टेथोस्कोप भी होते हैं ना, स्टेथोस्कोप्स ये भी डिस्पोजेबल होने चाहिए, स्टेथोस्कोप्स भी डिस्पोजेबल होते हैं, ठीक है, ये भी डिस्पोजेबल होने चाहिए। अगर नहीं हो रहे दैट इज फॉल्ट ऑफ द हेल्थ केयर, स्टेथोस्कोप भी डिस्पोजेबल, ठीक है। बीपी कफ की बात करूं, इन केसेस में भाई हम बीपी कफ भी डिस्पोजेबल यूज करते हैं, बीपी कफ भी डिस्पोजेबल अगर पॉसिबल है, ठीक है। बट अगर देखो अगर पेशेंट, आप सपोज स्टेथोस्कोप अच्छा वाला है किसी का, बहुत बढ़िया स्टेथोस्कोप है, नहीं वेस्ट करना चाहते, वो स्टेथोस्कोप कमरे के अंदर ही रहेगा जब तक पेशेंट वहां पे रहेगा, कमरे से बाहर स्टेथोस्कोप भी नहीं आएगा। डिसइंफेक्ट होगा कब होगा, जब पेशेंट लीव करेगा वहां से। When patient will get admission discharge, patient will get LAMA, patient will abscond और patient will have discharge on request, तभी आप वो स्टेथोस्कोप को निकाल के क्लीन करवाओगे, तभी आप बीपी कफ को डिसइंफेक्ट करवाओगे, अदरवाइज कमरे से बाहर भी नहीं जाएगा। बेस्ट होता है कि डिस्पोजेबल रखो। तो इसका क्या मतलब है, अगर कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस हैं तो उसको ये बोलना है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आना है, अंदर जाने से पहले हाथ धोने हैं, बाहर आने से पहले हाथ
फिर से धोने हैं। ग्लव्स पहनोगे अंदर जाने से पहले, बाहर आने से पहले उतार देने हैं। गाउन पहनना है अंदर जाने से पहले, बाहर आने से पहले उतार देना है। और सेम ग्लव्स गाउन दोनों पेशेंट के लिए यूज नहीं कर सकते आप। इक्विपमेंट्स भी क्रॉस पेशेंट्स पे यूज नहीं कर सकते। इक्विपमेंट्स कमरे से बाहर भी नहीं आएंगे जब तक पेशेंट आपके पास हॉस्पिटल में है। बीपी कफ भी पेशेंट के डिस्पोजेबल या स्टेथोस्कोप डिस्पोजेबल रखोगे अगर पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल तो डिसइंफेक्ट करना है, तो वो तब डिसइंफेक्ट होगा जब पर्सन हॉस्पिटल प्रेमाइसिस लीव करेगा। तो ये जो कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस का मैंने आपको पढ़ाया, इट इज पॉसिबल कि आपको इसमें से एक या दो क्वेश्चंस कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस में से ही आ जाए। एट द मोमेंट द स्क्रीन यू आर लुकिंग एट, इट्स पॉसिबिलिटी एक दो क्वेश्चंस यही से हो। ठीक है, तो लेट मी टेल यू अ वेरी बेसिक एग्जांपल। ठीक है, तो आज ही आई वेंट टू लाइक स्विमिंग पूल, है ना, तो मतलब मैं जनरल एग्जांपल बता रहा हूँ। तो इट वाज माय डे 1, है ना, तो आई ट्राइड विद स्विमिंग। ठीक है, आई वेंट इनसाइड, आई कुड नॉट स्विम। ठीक है, पास में सब लोगों को देख के आई वाज गेटिंग दिस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कि मुझसे मेरे को नहीं होगा, मुझे नहीं आता, है ना। तो सेम गोज विद द एनक्लेक्स, इसलिए मैं रिलेटेबल बता रहा हूँ। उसमें क्या होता है, बाकी लोगों को मैंने देखा, है ना, मेरे से बॉडी बैलेंस भी नहीं हो रही थी, आई कुड नॉट इवन फ्लोट, है ना, देयर इज सम टेक्निक, फ्लोटिंग भी नहीं। फर्स्ट आई थॉट कि मैं गलत जगह आ गया, लेट मी गेट आउटसाइड ऑफ दिस जोन, है ना, फंस गया मैंने कहा मैं बाहर निकलता हूँ, आई विल गो सिट ऑन द साइड, आई विल सी पीपल स्विमिंग। ठीक है, उसके बाद में लाइक देयर वाज वन ऑफ आवर फ्रेंड, ठीक है, हु वाज जस्ट लाइक कोच, है ना, मैं कोच की इमेज ही दूंगा उसको। उसने मेरे को बॉडी मैकेनिक्स बताए थोड़े बहुत। ठीक है, एंड वी स्पेंट अप्रॉक्स 3 आवर्स देयर। मेरे को एटलीस्ट बैलेंस करना आ गया, हाउ टू लेट योर बॉडी फ्री फ्लोट, है ना, बॉडी कैसे करके। इससे क्या बताना चाह रहा हूँ कि हर एक चीज कई बार हमको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, और उस पे पता है क्या मैकेनिक सेम चलेंगे। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। डेली डेली करूंगा आ जाएगी वो, है ना, वो पता भी नहीं चलेगा कब आएगी। और अगर मैं चाहता, मेरे दिमाग में होता कि मेरे को आज ही सीखनी है, आ जाती। एनक्लेक्स बोलूं आज ही करना है, नहीं होगा, जितना मर्जी एफर्ट लगा लूं। ये स्लोली ग्रेजुअली आती है। द स्किल्स दिस गेट इनग्रेन्ड इनटू योर पर्सनालिटी ओवर टाइम। वो खुद डेवलप होती है, ब्रेन डेवलप होता है उस टाइप पे, ब्रेन कंडीशनिंग होती है उस टाइप पे, आपका लॉजिक रीजनिंग उस टाइप से सिंथेसाइज होते हैं। तो एट टाइम्स आपको भी लगेगा कि आप कहाँ पे आ गए, आपको पता ही नहीं चल रहा करना क्या है। तो पता क्या करना है, जब नहीं पता चल रहा क्या करना है, यू शुड कीप गोइंग, कीप डूइंग द थिंग्स। ठीक है, कॉन्टेक्ट प्रिकॉशंस नहीं पता चल रहे, 2 बार 3 बार पढ़ो। नहीं पता चल रहा, आस्क मी, सेंड मी वॉइस नोट। ठीक है, तो ऐसे ही इट्स अबाउट एनक्लेक्स। तब उसी टाइम पे मैं रिलेट कर पा रहा था, मैंने कहा कई स्टूडेंट्स के लिए टफ होता है एनक्लेक्स करना, इट्स द सेम थिंग। अगर आप किसी की बात सुन रहे हो, देयर सम कोच, उसके जो वो बोल रहा है वो फॉलो करना पड़ेगा। कभी कभी ये भी लगेगा कि हाँ हमको 3-4 बार पढ़ने के लिए बोल दिया, एक बार में मेरे को याद हो जाएगा, बट वो 3-4 बार पढ़ने बोलने के पीछे भी रीजन होता है, बिकॉज इसमें से बहुत पेपर आ जाएगा, और अगर आपको अच्छी तरीके से याद है, भूलने का गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमने कॉन्टेक्ट प्रिकॉशंस पढ़ लिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट ट्रांसमिशन। तो इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट ट्रांसमिशन में क्या होता है, दे नीड सम ऑफ द मोड। ठीक है, कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट या पर्सन होना चाहिए। एग्जाम्पल, डॉक्टर या नर्स के हैंड ऑफ हेल्थ केयर पर्सनल में ट्रांसमिट पैथोजेंस। सपोज उसने एक पेशेंट को कंटामिनेटेड था, टच किया, हैंड हाइजीन नहीं करी, दूसरे पेशेंट को टच कर दिया, एक से इन्फेक्शन दूसरे को कर दिया। तो इट इज, उसको हुआ तो पर्सन से, दूसरे पेशेंट से, बट डायरेक्टली तो नहीं हुआ ना, वो पेशेंट के पास नहीं गया, गया कौन था, नर्स या डॉक्टर, तो उससे हो गया। दीज आर हैंड्स ऑफ हेल्थ केयर पर्सनल। ठीक है, अगर उसने हैंड हाइजीन नहीं करी है। पेशेंट केयर डिवाइसेस, थर्मोमीटर्स। अब मेरे को ये बताओ, थर्मोमीटर्स हम क्रॉस यूज करते हैं पेशेंट्स के? नहीं करते, पहले करते थे, अब वी डू नॉट यूज, बिकॉज इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट ट्रांसमिशन के रिस्क है। हम ये भी कोशिश करते हैं कि ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइसेस भी पेशेंट के अपने हो।
because they may transmit pathogens if devices contaminated with blood or body fluids are shared between patients without cleaning and disinfecting between patients. अब इसमें ना मैं आपको बाद में भी बताऊंगा, बट एक चीज याद रखनी है कि कभी यूज नहीं, शेयर नहीं करने. ब्लड कंटामिनेशन डिसकंटामिनेट करना है आपने, इवन आपने ग्लूकोमीटर्स को. और ग्लूकोमीटर्स वंस इन अ वाइल, suppose once in a month, they have to be sent for quality control purposes. उसकी भी चेकिंग होगी, whether their calibration is okay, functioning okay, everything like that. ठीक है. अब देखो shared toys, बच्चों में ना in pediatrics we have to allow toys to the hospital. ठीक है, टॉयज से भी हो सकता है. तो अगर किसी पर्सन बच्चे को रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस है या सूडोमोनास का इन्फेक्शन है, टॉयज शेयर कर सकते हो? नहीं कर सकते, बिकॉज इट विल लीड टू इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन. ठीक है. अब देखो इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर इनएडिक्वेटली क्लीन्ड बिटवीन पेशेंट्स बिफोर डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन, सपोज एंडोस्कोप्स या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स. अगर इसको नहीं क्लीन किया तो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन हो जाएगी. ठीक है. मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स जिसके कारण इंफेक्शन हो जाए, क्लोथिंग, यूनिफॉर्म, लैब कोट्स, ठीक है, personal protective equipments, these may become contaminated with pathogens after care of patient colonized or infected with infectious agent. तो ये पता चल गया, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पेशेंट के स्किन से भी हो सकता है, पेशेंट के म्यूकोजा से भी हो सकता है, पेशेंट के सलाइवा से भी हो सकता है, इनडायरेक्ट हैंड से हो सकता है, डिवाइसेस से हो सकता है, टॉयज से हो सकता है, यूनिफॉर्म से हो सकता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट से हो सकता है. ठीक है. अब नेक्स्ट देखो ड्रॉपलेट और एयरबॉर्न ट्रांसमिशन, इसकी भी बात करूं तो दिस इज अगेन अ 5 स्टार. 5 स्टार का क्या मतलब है? एक या दो क्वेश्चन आपको इसमें से आ जाएंगे. ठीक है. तो अब देखो ड्रॉपलेट, जब ड्रॉपलेट बोलते हो, ड्रॉपलेट में याद रखना स्पाइडरमैन. देखा होगा स्पाइडरमैन बहुत, है ना, बचपन में. नहीं देखा, नहीं भी देखा होगा, सुना होगा, है ना. तो स्पाइडरमैन याद करना है तो स्पाइडरमैन में क्या करोगे? 3 बार एस लिख लेनी है, 3 बार ही पी लिख लेना है, एक बार आई, एक बार डी, एक बार ई, एक बार आर, 3 बार एम, ए एन इकट्ठा लिख लेना है. अब देखो एस फॉर सेप्सिस, स्कारलेट फीवर, स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस, पी फॉर पार्वोवायरस, न्यूमोनिया, पर्ट्यूसिस, आई फॉर इन्फेक्शन, डी फॉर डिप्थीरिया, ई फॉर एपिग्लोटाइटिस, आर फॉर रूबेला, एम फॉर मम्प्स, मेनिंजाइटिस, माइकोप्लाज्मा और मेनिंजियल न्यूमोनिया, ए एन फॉर एडिनोवायरस. ठीक है. तो ये सारी चीजें दीज आर ड्रॉपलेट, दीज आर स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट. अब यहां पे देखते हैं हम ड्रॉपलेट और एयरबॉर्न में फर्क क्या है. ड्रॉपलेट और एयरबॉर्न, जो ड्रॉपलेट में, अब देखो दोनों ट्रांसमिट कैसे होते हैं, ये ध्यान देना, दोनों ट्रांसमिट होते हैं ड्रॉपलेट से. ड्रॉपलेट भी ड्रॉपलेट से ट्रांसमिट होता है, एयरबॉर्न भी ड्रॉपलेट से ट्रांसमिट होता है. बट अगर ड्रॉपलेट का साइज मोर देन 5 माइक्रोन है, मतलब अगर ड्रॉपलेट्स हैवी हैं, तो इसको आप बोल दोगे दिस इज ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, क्योंकि ये जो ड्रॉपलेट्स हैं ये सेटल डाउन कर जाएंगे. हैवी है, उसे हवा में स्नीज किया, सपोज अ पर्सन विद मेनिंजाइटिस हैज स्नीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट, अब वो 5 माइक्रोन तक है, वो सेटल डाउन कर जाएंगे, एयर में सस्पेंडेड नहीं रहेंगे. 5 माइक्रोन से हैवी होते हैं तो नीचे बैठ जाएंगे, इसको बोलेंगे ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन. बट जो एयरबॉर्न है उसके पार्टिकल्स 5 माइक्रोन से छोटे होते हैं, मतलब ह्यूमन हेयर 60 टू 120 माइक्रोन्स वाइड होता है. ठीक है, ह्यूमन हेयर. तो ये ह्यूमन हेयर से भी छोटे हैं, 5 माइक्रोन देख लो. बाल से भी इतना छोटा पार्टिकल, तो इतना छोटा पार्टिकल हवा में फ्लोट करेगा तो एयर में रह जाता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज एयरबॉर्न. ठीक है. अब इसीलिए क्योंकि ड्रॉपलेट का साइज बड़ा होता है, इसमें हम सर्जिकल मास्क भी चला लेते हैं. एयरबॉर्न में सर्जिकल मास्क नहीं चलेगा, N95 या हायर चलाना पड़ेगा. आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में. यहाँ पे इतना याद रखो, अगर ये कोई भी पेशेंट है, एपिग्लोटाइटिस, रूबेला, मम्प्स, मेनिंजाइटिस, तो नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगी? नर्सिंग इंटरवेंशन, नर्स हैज टू पुट दैट पेशेंट इन अ प्राइवेट रूम. BM ठीक है, house. प्राइवेट रूम, कोहोर्ट,
मास्क, हाँ मास्क जरूरी है। कोहोर्ट का मतलब क्या है? मल्टीपल पेशेंट्स विद अ सिमिलर डायग्नोसिस कैन बी पुट टुगेदर। Suppose you can put all the meningitis patients together, that will be okay. But meningitis और tuberculosis वाला no. ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स आर जनरेटेड व्हेन इन्फेक्टेड पर्सन। कब कब ड्रॉपलेट्स जनरेट होती हैं? जब पर्सन कफ करता है, स्नीज करता है, बातें करता है, या प्रोसीजर्स एज सक्शनिंग, एंडोट्रेकियल इंटुबेशन, चेस्ट फिजियोथेरेपी, इवन सीपीआर। अब मेरे को बताओ सीपीआर में मास्क की जरूरत है? यस, क्योंकि ड्रॉपलेट्स जनरेट होती है। फिजियोथेरेपी में जरूरत है? जरूरत है। इंटुबेट करते वक्त जरूरत है? यस, जरूरत है। अब नेबुलाइजेशन बताओ, नेबुलाइजेशन में जरूरत है? यस, नेबुलाइजेशन में भी जरूरत है। अब पेशेंट पोजीशनिंग विद इंटुबेटेड, पेशेंट पोजीशनिंग, यस उसमें भी जरूरत है। इसमें भी एरोसोल्स निकल सकते हैं, ठीक है, कफ इंड्यूस हो सकती है ड्यूरिंग दैट टाइम। अब स्टडीज बताती हैं कि नेजल म्यूकोजा, नाक का अंदर वाली लेयर, कंजक्टाइवा, आई का वाइट पार्ट, these and less frequently mouth are susceptible portal of entry for respiratory viruses। इसीलिए क्या बोलते हैं जब रेस्पिरेटरी वायरस है, सपोज कोरोना वायरस है, क्या बोलते हैं? मास्क पहन के रखना है, ठीक है। It is likely that distance droplets travel depend upon velocity and mechanism by which droplets are propelled from the source, density of the secretions, environmental factors such as temperature, humidity, and ability of pathogen to maintain infectivity over the distance. So droplets traditionally have been defined as more than 5 micrometer in size। ठीक है, ड्रॉपलेट्स का साइज बड़ा होता है। अब नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या है ड्रॉपलेट में? ध्यान देना, ये भी 5 स्टार क्वेश्चन है। 1 2 3 4 एंड 5, मतलब पेपर यहां से आता है। ड्रॉपलेट प्रिकॉशन में केयर देना है जब भी प्रोसीजर कर रहे हो जिसमें कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्संस माउथ और नोज आएगा, ठीक है। ड्रॉपलेट प्रिकॉशन सिमिलर होती हैं एयरबॉर्न से, एक्सेप्ट कि इसमें मास्क आप तब पहनोगे अगर आप 3 फीट के कांटेक्ट में आ रहे हो, बिकॉज जो ड्रॉपलेट्स हैं, ड्रॉपलेट्स हैवी होते हैं 5 माइक्रोन से, तो कफ करेगा पर्सन, स्नीज करेगा, तो ड्रॉपलेट्स 3 फीट से दूर तक नहीं जा सकते। तो अगर 3 फीट दूर खड़े हो मास्क पहनने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये सीडीसी बोल रही है, बट हम पढ़ते हैं। ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस अगर लेने के लिए बोलोगे क्या लोगे? क्लीन देयर हैंड्स इंक्लूड बिफोर एंटरिंग एंड व्हेन लीविंग द रूम, मेक श्योर आईज, नोज एंड माउथ आर फुली कवर्ड बिफोर रूम एंट्री। या तो फेस शील्ड या आप गॉगल्स लगाओगे, सर्जिकल मास्क इंपॉर्टेंट है। और अगर फेस प्रोटेक्शन यूज करी है तो रूम से निकलने से पहले फेस प्रोटेक्शन भी रिमूव करनी है, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट द ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस। आई होप इट इज क्लियर विद यू अप टिल हियर। इज इट क्लियर? yes, ओके। अब देखो एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। एयरबॉर्न ट्रांसमिशन में पार्टिकल साइज इज लेस देन 5 माइक्रोमीटर, ठीक है। इसमें अगर मैं बात करूं पार्टिकल साइज, इट्स लेस देन 5 माइक्रोमीटर। स्प्रेड कैसे होता है? स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट्स, स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट्स। अब देखो इसमें क्या है, इट अकर्स बाय एयरबॉर्न ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई और स्मॉल पार्टिकल्स इन रेस्पिरेबल साइज रेंज, ठीक है। इसमें स्पोर्स हो सकते हैं, एस्परजिलस, माइकोबैक्टीरियम के स्पोर्स हो सकते हैं। इन्फेक्शियस एजेंट्स टू विच अप्लाइज इंक्लूड, एयरबॉर्न किस किस में होगा? तो एयरबॉर्न के लिए आपने याद रखना है एमटीवी, ठीक है। एमटीवी, एमटीवी का मतलब है मीजल्स में होता है, ट्यूबरकुलोसिस में वेरिसेला चिकन पॉक्स या वेरिसेला जोस्टर। अपनी तीनों याद करनी है। तो ये भी 5 स्टार है। किस किस में हो सकता है? आपका एयरबॉर्न वाला, ठीक है। अब देखो, तो यही वही नाम आ गए, ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स भी हो सकता है, वेरिसेला जोस्टर, ठीक है। Such transmitter has occurred over distance longer than 3 feet, but within a defined airspace, suggesting that it is unlikely that these agents may remain viable on air currents that travel long distances। अब इसमें याद करना है आपने MTV। MTV मतलब it can happen in the measles, it can happen in tuberculosis, it can happen in varicella,
एंड वेरिसेला जोस्टर। अब नर्सिंग इंटरवेंशन क्या आएंगे इसमें? प्लेसिंग द पेशेंट और रेजिडेंट इन प्राइवेट रूम विद द डोर क्लोज्ड। ठीक है, अब ये डोर क्या होंगे? ये डोर हैज टू बी नेगेटिव प्रेशर रूम। ठीक है, नेगेटिव प्रेशर रूम, नेगेटिव प्रेशर रूम विद HEPA फिल्टर। HEPA फिल्टर मतलब हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर, वो एयर को फिल्टर करके बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज करेगा। अदरवाइज अगर आपने रूम में से एयर निकाल ली, एनवायरनमेंट में छोड़ रहे, एनवायरनमेंट में फैला दोगे भाई, टीबी एनवायरनमेंट में फैला दोगे। ठीक है, व्हेन केयरिंग फॉर अ पेशेंट वियर मास्क, टाइम पेशेंट के रूम में रख जितना आप रुकोगे वो उसको मिनिमाइज करना है। व्हेन पेशेंट मस्ट लीव द रूम शी मस्ट वियर अ मास्क। कौन सा मास्क? पेशेंट को कौन सा मास्क पहनाओगे? सर्जिकल मास्क। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं कि आपके पास एयरबॉर्न प्रिकॉशंस वाला पेशेंट है। आगे जाता हूं, फिर मैं पढ़ाता हूं आपको, रुको। ठीक है, अब इसमें नर्स को, अब हम नर्सिंग इंटरवेंशन एक बार पढ़ लें यहाँ पे। क्लीन द हैंड्स बिफोर एंटरिंग द रूम एंड बिफोर लीविंग द रूम। N95 मास्क पहनोगे, N95 से ज्यादा वाला, उसको रिमूव कर दोगे रूम से बाहर निकलने के लिए, और डोर हमेशा बंद होना चाहिए कमरे का। अब देखो, नर्स ने तो पहन लिया N95, पेशेंट जा रहा है, पेशेंट को कौन सा मास्क पहनाओगे? सर्जिकल मास्क। दिस इज द डिफरेंस। क्योंकि ड्रॉपलेट का साइज, उतने ड्रॉपलेट उसके मुंह से बाहर ही नहीं निकलेंगे, तो सर्जिकल मास्क इज इनफ कि वो एनवायरनमेंट में नहीं आए उसके ड्रॉपलेट्स। ठीक है, तो पेशेंट को कौन सा मास्क पहनाओगे? तो ये एक ट्रैप देगा एनक्लेक्स, बोलेगा कि अ नर्स इज टेकिंग केयर ऑफ पेशेंट विद ट्यूबरकुलोसिस, पर्सन नाउ हैज टू गो टू रेडियोलॉजी फॉर हिज चेस्ट एक्सरे। Following the airborne precautions, nurse must ensure that person should wear, वो डाल देगा आपको N95 सर्जिकल मास्क। तो उसमें दोनों में से आप बोलोगे एयरबोर्न प्रिकॉशन N95, तो वो आंसर गलत हो जाएगा। चाहे आपको सारा ही पता हो, एयरबोर्न में ये होता है, एयरबोर्न में वो होता है, बट एट द मोमेंट आपने एक सिस्टम, एक चीज पे ट्रैप हो गए। क्या ट्रैप हो गए? पेशेंट था। एयरबोर्न प्रिकॉशन भी उसने बोल दिया, एयरबोर्न प्रिकॉशन में आपके दिमाग में आता है N95, बट याद रखना खुद N95, पेशेंट को सर्जिकल मास्क। ठीक है, नाउ ह्यूज एनक्लेक्स स्टेप्स, ये भी 5 स्टार है। ठीक है, ये भी 5 स्टार है। इसको मैं यहां से डिफरेंशिएट कर देता हूं। 5 स्टार का मतलब आएगा ही आएगा। अब पेशेंट और रेजिडेंट्स जिसको आपको लग रहा है एयरबोर्न इन्फेक्शन है या हो सकता है, उसको प्राइवेट रूम में रखना है। वो प्राइवेट रूम एयरबोर्न इन्फेक्शन आइसोलेशन रूम्स होते हैं, जिसमें वेंटिलेशन एंड फिल्ट्रेशन सिस्टम लगा होता है, स्पेसिफिकली HEPA फिल्टर्स लगे होते हैं, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर। ठीक है, अब हेल्थ केयर वर्कर्स शुड वियर मास्क व्हेन केयरिंग फॉर पेशेंट्स और रेजिडेंट्स विद नोन और सस्पेक्टेड ट्यूबरकुलोसिस। अगर हेल्थ केयर वर्कर एक्सपोज नहीं हुआ या हेल्थ केयर वर्कर को वैक्सीनेशन नहीं मिली, मीजल्स की या चिकन पॉक्स की, मतलब वो नॉन इम्यून है, तो उसको ये डिसीजेस हो सकते हैं। मास्क वियर करना पड़ेगा अगर इस पेशेंट का ध्यान रखना है मीजल्स या चिकन पॉक्स वाले में। ठीक है, अब ये चीज ना बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी सी है, ये सीडीसी की साइड पे, सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, कि अगर हेल्थ केयर वर्कर इम्यून है मीजल्स पे या चिकन पॉक्स के, तो मास्क जरूरी नहीं है। बट प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो आपको कभी भी इस पॉइंट पे एनक्लेक्स नहीं डालेगा, आपको हमेशा मास्क यूज करना ही है। N95 अगर ऑप्शन में होगा तो करोगे। अगर स्पेसिफिकली बोल रहा है कि पर्सन इज इम्यून टू मीजल्स और चिकन पॉक्स, तो अगर ऑप्शन में डाल रहा है मास्क, तो मास्क आप सेलेक्ट नहीं करोगे। इन दैट केस यू कैन अवॉइड दिस मास्क। ठीक है, mask should be placed on patient on the resident's face if transported from one location to another। तो ये कौन सा मास्क होगा? सर्जिकल मास्क। सर्जिकल मास्क। ट्रांसपोर्ट ऑफ पेशेंट और रेजिडेंट शुड बी केप्ट टू मिनिमम। ठीक है, डोर उसका क्लोज होना चाहिए, और प्रिकॉशंस फॉर प्रिवेंटिंग ट्रांसमिशन should be implemented if patient or resident is known or suspected to have tuberculosis। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा एयरबॉर्न में।
एयरबॉर्न में एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या करना है। एयरबॉर्न में आप याद करोगे एमटीवी, मीजल्स, ट्यूबरकुलोसिस, वेरिसेला, चिकन पॉक्स या वेरिसेला जोस्टर। इंटरवेंशंस में क्या, अंदर जाने से पहले हाथ धोने हैं, बाहर निकलने से पहले हाथ धोने हैं। नर्स ने N95 पहनना है अंदर रूम में, अंदर जाने से पहले, बाहर आने से पहले उतार देना है, डोर बंद रखना है। ठीक है, पेशेंट को कम से कम बाहर आने की कोशिश करोगे, कम कम बाहर आए, बाहर आएगा तो पेशेंट सर्जिकल मास्क पहनेगा। ठीक है, रूम में HEPA फिल्टर्स लगे होने चाहिए। ठीक है, दैट्स ऑल यू नीड टू नो अबाउट द एयरबॉर्न प्रिकॉशन। इसके ऊपर आपको एयरबॉर्न प्रिकॉशन में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। दे विल नॉट आस्क यू एनीथिंग बियॉन्ड दैट। ठीक है, अब ओरल फीकल ट्रांसमिशन। ठीक है, वी आर ऑन पेज नंबर 5। मैं आपको बताता हूं हम कितना पढ़ेंगे आज। 5 है, ओके। हमें कॉन्टेक्ट ट्रांसमिशन का यहां तक पढ़ेंगे हम। ठीक है, यहां तक पढ़ लेंगे आज के लिए। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस कल करेंगे, पीपी कैसे पहनते कल करेंगे। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक प्रिवेंशन ऑफ कॉटी वगैरह, ये आपके लिए थोड़ा इजी होगा, तो ये भी हम कल पढ़ेंगे। फॉल भी पढ़ेंगे, रिस्ट्रेंट्स पढ़ेंगे, पेशेंट आइडेंटिफायर्स पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद you will get some of the questions as mock test for infection control। आप कोशिश करना वही क्वेश्चन एटलीस्ट 2-3 बार उसको अटेम्प्ट करना, और 2-3 बार ही आप उसके रैशनल्स रिव्यू करना, क्योंकि मेन गोल आपका ये रहेगा कि आप बार बार क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, क्वेश्चन से लर्न करो। ये नहीं होगा कि एक ही बार में क्वेश्चन में स्कोर करो। ठीक है, ओरल फीकल ट्रांसमिशन या फीको-ओरल ट्रांसमिशन भी बोल देते हैं, मतलब नाम से पता चल रहा है फीसस से है, मुंह के थ्रू स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई विल बी बैक। Okay, so now resuming to oral fecal transmission. So some pathogens are transmitted through oral fecal route. Pathogen digestive tract में रहता है person के and leaves the body in feces. So feces can contaminate food and water. Then जब other person eats or drinks the contaminated food or water, he becomes infected. तो इसकी प्रिवेंशन हो सकती है, प्रिवेंशन थ्रू हैंड हाइजीन एंड सैनिटेशन टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस दैट स्प्रेड थ्रू ओरल फीकल रूट। तो अब फीको ओरल रूट से कौन कौन से स्प्रेड होते हैं इसके नाम याद होने चाहिए। रिमेंबर ए एंड ई, दीज आर वॉवल्स। ठीक है, एंड दे स्प्रेड थ्रू बावल। बावल मतलब फीको ओरल ट्रांसमिशन। vancomycin resistant enterococci and some types of parasitic infections. Okay, now blood-borne infections. Blood-borne infections. Please make note that these are spread through blood and body fluids. Infectious person से enter करते हैं किसी person के host के blood stream में। ठीक है, अब काफी methods हैं जिससे ये हो सकता है। Suppose body fluid के exposure में आ गए या semi liquid substances produced by body such as blood, यूरिन से भी हो जाएगा ब्लड बॉर्न ट्रांसमिशन, फीसेस से भी हो जाएगा, वॉमिटिंग से, इवन सलाइवा से ब्लड बॉर्न ट्रांसमिशन होगा, ड्रेनेज फ्रॉम वुंड से ब्लड बॉर्न ट्रांसमिशन होगा, स्वेट से होगा, सीमन से हो सकता है, वेजाइनल सिक्रीशन से, टीयर्स से भी हो सकता है, सीएसएफ से भी हो सकता है, एमनियोटिक फ्लूइड से भी हो सकता है, और ब्रेस्ट मिल्क से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये काफी सारे बॉडी फ्लूइड से भी ट्रांसमिट हो सकता है। अदर थिंग इज नीडल स्टिक्स, नीडल्स से भी हो सकता है। Puncture wounds caused by used needles, cuts from contaminated or broken glass such as broken blood tube, direct contact between blood and broken skin, mucous membrane or eyes. Body fluids that are most likely to cause blood-borne pathogens include blood, semen and vaginal secretions. तो blood-borne में इतना आपको याद रहना चाहिए। अब this is Clostridium difficile. अब Clostridium difficile की बात करूं, ये भी 5 स्टार है। ठीक है, क्लॉस्ट्रिडियम डिफिकल क्या है, स्पोर फॉर्मिंग ग्राम पॉजिटिव एनारोबिक बैसिलस है।
तो स्टूल्स में से फर्स्ट फाइंड आउट हुआ था, ठीक है। तो ये 1935 में न्यूनेट्स के स्टूल में आइडेंटिफाई हुआ था, ठीक है। मोस्ट कॉज कॉमनली कॉजेटिव एजेंट इसका एसोसिएटेड डायरिया एंड सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस, ठीक है। ये 1977 में। तो कई जो ड्रग्स हैं वो क्लॉस्ट्रिडियम डिफिकल का इन्फेक्शन करवा देते हैं। तो आप यही बोलोगे एंटी माइक्रोबल्स के कारण एक सुपर इन्फेक्शन होता है। सुपर इन्फेक्शन, एंटी माइक्रोबियल्स के कारण एक सुपर इन्फेक्शन होता है। सुपर इन्फेक्शन को बात करोगे आप, क्लॉस्ट्रिडियम डिफिकल का इन्फेक्शन। कौन कौन सी दवाइयां? थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स, इसमें हम नाम लिखेंगे, लिखो सेफ्ट्राइएक्सोन, ये थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है, ठीक है। और सिफोपैराजोन, ये भी थर्ड जनरेशन है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ये इसका ज्यादा देते हैं, तो इसके कारण भी पर्सन को लूज टूल्स वगैरह लग जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि ये एंटीमाइक्रोबियल्स क्लॉस्ट्रिडियम डिफिकल का इन्फेक्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट इज क्लिंडामाइसिन। क्लिंडामाइसिन हायर क्लासेस ऑफ एंटीबायोटिक है। वेंकोमाइसिन से भी हो जाएगा, फ्लोरोक्विनोलोन से भी हो जाएगा। फ्लोरोक्विनोलोन की एग्जांपल बताऊं तो ये होगा ओफ्लॉक्सेसिन, ओफ्लॉक्स, ठीक है। और क्या है, सिप्रोफ्लॉक्सेसिन, अच्छे। मॉक्सीफ्लॉक्स, जेमीफ्लॉक्स और स्प्लारफ्लॉक्स। हाँ जी, यू वर टेलिंग समथिंग। ओफ्लॉक्स, सिप्रोफ्लॉक्स और भी फ्लॉक्सेसिन वाले सारे ड्रग्स, ठीक है। इसमें अब नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या आएंगी? नर्सिंग इंटरवेंशंस आएंगी, वॉश हैंड्स विद सोप एंड वाटर। इसमें कभी भी सैनिटाइजर नहीं होगा। क्लॉस्ट्रिडियम डिफिकल का इन्फेक्शन है तो हमेशा सोप एंड वाटर से धोगे, हैंड वॉश। वियर गाउन्स एंड ग्लव्स, दिस विल स्प्रेड prevent the spread of Clostridium difficile to themselves and the patient. Wash your hand with soap and water every time you use bathroom and always before you eat. Remember relatives and friends taking care of the patient to do the same. यहाँ पे यू का मतलब है पेशेंट, ठीक है। ये आपने एजुकेट करना है, ये आप एजुकेट करोगे, एजुकेट टू द पेशेंट, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट क्लॉस्ट्रिडियम डिफिकल। अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसमिशन, फोकस ऑन सिंड्रोमिक एप्लीकेशन ऑफ कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस। तो अगेन इसमें आप कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस ही लोगे। क्लॉस्ट्रिडियम डिफिकल में हमने पढ़ी है, दोबारा पढ़ लेते हैं। आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पेशेंट को, रिगरस क्लीनिंग ऑफ पेशेंट रूम्स, कंसिस्टेंट हैंड हाइजीन। तो क्या करोगे? यूज ऑफ सोप एंड वाटर। कहीं में भी आपको क्लॉस्ट्रिडियम डिफिकल का नाम आ गया, सोप एंड वाटर rather than alcohol based hand rubs. For mechanical removal of spores from hands and bleach containing disinfectant, डिसइंफेक्टेंट यूज करो जिसमें ब्लीच होगा, ठीक है। फॉर एनवायरमेंटल डिसइंफेक्शन may be valuable when there is transmission in the healthcare facility. Now, multi-drug resistant organisms, MDROs, MDROs कौन से आगे? Methicillin resistant Staph aureus, vancomycin resistant Enterococci. These pathogens are usually resistant to all but a few commercial available antimicrobial agents, ठीक है। अब हम ऊपर एक बार देख लें क्या क्या ध्यान दोगे कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस में। बिफोर एंटरिंग द रूम, हैंड हाइजीन। बिफोर लीविंग द रूम, हैंड हाइजीन। ग्लव्स बिफोर एंटरिंग द रूम and you will remove the gloves before leaving the room. No gown, no same gown and same gloves for two different patients. Dedicated equipments to be used in Clostridium difficile patients too. ठीक है। अब next, MDROs are considered to be epidemiologically important, ठीक है। तो just wait. Yes. Now, MDROs are considered to be important and deserve special attention in healthcare.
एमडीआरओज में क्या होता है, ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है, लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है which is resistant to penicillin. Broad spectrum agents like macrolides and fluoroquinolones, multi drug resistant gram negative bacilli, ठीक है, और extended spectrum beta lactamases and strain of streptococcus aureus that are intermediate or resistant to vancomycin. MDROs are transmitted by same route as antimicrobial susceptible infectious agents. Patient to patient transmission healthcare setting में usually by hands of healthcare workers हो जाते हैं, तो MDRO में आपने इस चीजों का ध्यान रखना है, स्पेशली MRSA और vancomycin resistant staph aureus, ठीक है, vancomycin resistant enterococci. अब preventing the emergence and transmission of these pathogens requires a comprehensive approach that includes administrative involvement and measures, nurse staffing, communication systems, performance improvement processes to ensure adherence to recommended infection control measures, education and training of medical and other healthcare personnel, judicial antimicrobial use, comprehensive surveillance of MDROs and infection control practices, proper use करनी, proper cleaning और disinfection of patient and the surrounding equipments, ठीक है. तो अब देखो there are certain signs of infection. कौन से signs of infection आप monitor करोगे patient में, आपको पता चलेगा कि person को infection हो गया. Fever है, but fever देखो old age patients में ना fever नहीं आएगा, ठीक है, old age में fever it's not a common finding, but common finding of infection in old age. Old age में infection का most common finding क्या है? This is confusion. You will be alarmed to hear this, but सबसे ज्यादा common चीज है confusion. आपको confused old patient वाला केस आया, आपके दिमाग में होना चाहिए this is sepsis. बंदा is an infection. A rapid pulse, a rapid respiratory rate or changes in BP might indicate infection. सांस लेने में पेन और डिफिकल्टी ब्रीदिंग, डिस्निया होगा तो भी इंफेक्शन हो सकता है. रेडनेस, स्वेलिंग, पेन और वार्मथ, दिस माइट इंडिकेट साइंस ऑफ इंफेक्शन. फाउल स्मेलिंग और क्लाउडी यूरिन, साइन ऑफ इंफेक्शन. पेन और डिफिकल्टी यूरिनेटिंग, साइन ऑफ इंफेक्शन. डायरिया और स्मेलिंग stool, it is also sign of infection. Nausea, vomiting, lack of appetite might be indicative of infection. Skin rashes, again sign of infection. Fatigue, sign of infection. Increased confusion or disorientation, sign of infection. Any unusual discharge or drainage from the body, this might also indicate sign of infection. Okay, so this was like brief about part 1 of the infection control. ठीक है, तो if you have any doubts, go through this again and again. इसको बार बार पढ़ना, because this is of utmost importance. यही चीजें आपको पेपर में पूछी जाएंगी, ठीक है.